میں اپنے تمام سامعین کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر میری حوصلہ افزائی کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے اور آپ کا اور ہمارا رابطہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ ایک سچ بیانی ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ دنیا آج بھی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے۔ سومرو بھی ایک ایسا ہی بندہ ہے۔ ایسے ہی بندوں کی وجہ سے ہم آپ سب کے سب سکھ کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، ورنہ تو یہ دنیا گناہوں کے بوجھ سے تباہی کی دلدل میں دھنستی جا رہی ہے۔ میں حسب معمول صبح 7 بجے گھر سے نکلا۔ میرے ہاتھ میں رنگ کا خالی ڈبہ تھا جس میں 2-3 قسم کے برش تھے، دیگ مال کے ٹکڑے بھی تھے۔ اس وقت میری بیوی نے اخبار میں لپیٹی 2 چپاتیاں اور گڑ کی ڈلی رنگ والے ڈبے میں رکھ دی۔ میں دروازے پر کھڑے کھڑے کہا، سکینہ، اللہ سے آج کچھ نہ کچھ انتظام کر دے گا، بس تم دعا کرتی رہنا، خدا حافظ۔ دن کی گرمی وہ بھی شکارپور کی۔ آج صبح ہی سے لو چل رہی تھی اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ مین بازار میں سڑک کے کنارے اور بھی مزدوری دہاڑی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں بھی لائن میں بیٹھ گیا۔ قریب ہی میرا پرانا ساتھی پٹھل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ آؤ ادا قمر، گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ بھابھی سکینہ کیسی ہے؟ نئی مہمان کے آنے میں اب کتنی دیر ہے؟ پٹھل نے میرے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے بیڑی سلگا کر کہا، یار تمہاری بھابھی مولا کے کرم سے بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی 7 مہینے ہیں، سوچتا ہوں وقت پر کیا ہوگا، یہاں تو پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فکر کیوں کرتے ہو ادا؟ اللہ سائی نے 4 سال کے بعد خوشی دی ہے تو حفاظت بھی وہی کرے گا۔ ہاں یہ تو ہے، بس مولا کا ہی بھروسہ ہے۔ میں نے بیڑی کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ اپنا یار سومرو دبئی سے 2 سال بعد آیا ہے، آج شام اس نے پرانے دوستوں کو بلایا ہے، کھانا بھی ہوگا، اس کی کہانیاں بھی سنیں گے، تو بھی چلے گا نا؟ ہاں کیوں نہیں ادا؟ پٹھل نے سگریٹ سلگائی۔ اللہ سائیں اسے خوش رکھے، اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں کو بلایا ہے، ورنہ پیسہ آنے کے بعد کون غریب یاروں کو پوچھتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک ڈبل کین گاڑی سامنے رکی۔ تمام مزدور اٹھ کر گاڑی کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ سیٹ کو نئی کھدائی کروانی تھی۔ 4 مزدور گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے، باقی سب واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پٹھل نے کہا، ادا اسے میں جانتا ہوں، یہ ٹھیکیدار جاکھرانی تھا، یہ 3 پلازے بنوا رہا ہے، اس کے پاس کام نکلتا رہتا ہے، رنگو روغن کا کام نکلے گا تو ہمیں ضرور بلوائے گا۔ شام 5 بجے ہم ٹھیے سے اٹھ گئے۔ میں پسینہ پہنچتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو سکینہ شکل دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ آج بھی دہاڑی نہیں لگی۔ اس نے کہا، سائیں تم نلکے پر ہاتھ منہ دھو لو، میں 2 مٹھی چاول ابالے ہیں وہ لے کر آتی ہوں۔ میں نے کاندھے پر پڑے پڑے رومال سے منہ پوچھتے ہوئے کہا، سکینہ چاول رہنے دو، وہ تم شام کو کھا لینا، رات کو سومرو نے سب دوستوں کو دعوت پر بلایا ہے، میں وہاں کھا لوں گا، بس تم میرے لیے گرم گرم چائے بنا دو، اگر وہ بھی دودھ پتی بچی ہو۔ ہاں تم بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ سکینہ اٹھ کر بغیر چھت کے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ مغرب کی نماز کے بعد میں گھر سے نکلا۔ پٹھل کا گھر راستے میں تھا، اسے بھی لے لیا۔ سومرو کا گھر 2 گلیوں کے بعد ہی تھا، 2 منزلہ پکا خوبصورت مکان تھا۔ سومرو دروازے پر ہی مل گیا، ہم گلے ملے، پھر میں نے کہا، یار سومرو تیری بڑی مہربانی، تم نے پرانے غریب دوستوں کو یاد رکھا، اللہ تجھے خوش رکھے۔ یار ایسی غیروں جیسی بات مت کر ورنہ لڑائی ہو جائے گی، تم دونوں میرے بچپن کے یار ہو، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ آؤ اندر آ جاؤ، سب یار آ چکے ہیں، بس تم دونوں کا انتظار تھا۔ میں صحن میں دریاں بچھی تھی، ان پر سفید چاندیاں اور اسی رنگ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں تکے رکھے تھے۔ سب دوست اٹھ کر دونوں سے گلے ملے۔ یار قمر تم تو بالکل عید کے چاند ہو گئے ہو، کبھی ملتے ہی نہیں ہو، نبی بخش عرف بخشو نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں یار تیری شکایت بجا ہے، بس یار روزگار کے جھمیلے فرصت ہی نہیں دیتے، کبھی دہاڑی لگ جاتی ہے، کبھی خالی ہاتھ رہ جاتا ہوں، تو سنا تیرا کیا حال ہے؟ مولا کا کرم ہے، میرا پان سگریٹ اور ٹھنڈی بوتلوں کا کام خوب چل رہا ہے، اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، بخشو نے جواب دیا۔ سومرو نے کہا، یارو کیا موڈ ہے، کھانا بھی لگواؤں یا پہلے گپ شپ چلے گی؟
आफताब चन्ना जो अभी तक खामोश बैठा था, खाना तो ईशा की नमाज के बाद खाएंगे, पहले तुम्हारी 2 साल की कथा सुनेंगे। गपशप नहीं, बिल्कुल सच और खरा सच, जैसे तुम लोगों की मर्जी। कराची से दुबई सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट है। जब मैं वहां जहाज से उतरा तो बहुत डरा हुआ था। अजनबी मुल्क, अजनबी शहर, अजनबी जुबान। इतना बड़ा एयरपोर्ट के आदमी चलते चलते थक जाए, लेकिन जब मैं पासपोर्ट, कस्टम वगैरह से फारिग हुआ तो तमाम डर खौफ दूर हो गया। वहां एक पाकिस्तानी मेरे नाम की तख्ती लिए खड़ा था। मैं उसी के पास गया। पहले तो वो मेरा टीन का बक्स देखकर बहुत हंसा। कहने लगा, यार तुम तो बिल्कुल पेंडू मालूम होते हो। खैर, कल मैं तुम्हें अच्छा सा सूटकेस दिलवा दूंगा। मेरा नाम जमशीद है। मेरा ताल्लुक कराची से है, आओ मेरे साथ। बाहर आकर मैंने अपना बक्सा उसकी कार की डिग्गी में रखा और हम शहर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उसने कहा, सुन लो, मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ। मेरा वर्कर्स का रिकॉर्ड रखना, इनकी मदद करना, यहाँ चोरी चकारी नहीं होती। किसी किस्म की मजहबी या दूसरी सियासत में मत पड़ना। लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे तो तुम कुछ भी सेविंग नहीं कर सकोगे। अपना काम ईमानदारी से करना, बाकी तुम खुद समझदार हो। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला दिन दुबई में। दूसरे दिन से मैंने बकाला में काम शुरू कर दिया। बकाला का तुम समझ लो जैसे कराची में बड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं। ये जो मेरा मकान देख रहे हो, ऐसे 10 मकानों को मिला लो तो 4 मंजिला बकाला अल कबीर बनेगा। यहाँ का मैनेजर इंडियन है, मद्रास का रहने वाला है, बहुत अच्छी उर्दू बोलता है। मेरे दिल में खौफ बैठा हुआ था कि अरबी बोली जाती है, कैसे काम चलेगा यहाँ। बैंकों में जाओ, दुकानों में जाओ तो सब जगह उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी इंडियन मिल जाते हैं। किस्सा मुख्तसर, तुम्हारे भाई ने 2 महीने में अपना रंग जमा लिया। अब थोड़ा सा ब्रेक, में अभी आया, कहकर समरो जनाने में चला गया। थोड़ी देर में आया तो उसके हाथ में छोटे छोटे कुछ शॉपिंग बैग थे। उसने एक बैग हर एक को दिया। यारो, मुझे मुबारकबाद दो, तुम्हारे भाई ने आते हुए मदीना शरीफ की जियारत और उम्रे की सादत भी हासिल कर ली है। इस बैग में मदीना शरीफ की खजूरें और आबे जमजम की शीशियां हैं। सबने उठकर सुमरो को गले लगाकर मुबारकबाद दी। इसी असला में 2 छोटी बच्चियां दस्तरखान लिया और बिछाना शुरू कर दिया। उसके बाद खाने की काबें आने लगी। एक काब में खुशबू उड़ाते कबाब, दूसरे में पराठे थे। एक बड़ी ट्रे में भाप उड़ाती मुर्ग बिरयानी थी। सुमरो ने कहा, दोस्तों तकल्लुफ मत करना, चलो शुरू हो जाओ। सबने अपनी अपनी प्लेटें भरनी शुरू कर दी। मैंने पहला नवाला ही मुंह में रखा था कि आंखों में नमी तैरने लगी। दिमाग में गूंज उठी, मैं यहाँ कबाब बिरयानी उड़ा रहा हूँ, घर में मेरी बीवी बुगी है। सब ने खूब पेट भरकर खाया। इसके बाद कहवे का दौर चला। आफ्ताब चन्ना ने कहा, सुमरो, तुमने दाल रोटी वाली रोजी का जिक्र कर दिया, कुछ 2 टांगों वाली रोजी का हाल अहवाल सुनाओ। सबने कहका लगाया। सुमरो ने कहा, यार वहाँ लड़कियां बहुत हैं, अगर मैं उनके चक्कर में पड़ता तो मैं अपनी घर वालों के लिए कुछ न कर पाता। मुझे अपनी बेटियों के लिए भी कुछ करना है। मैंने 10-10 ग्राम वाली गनिया खरीदी हैं। गनिया जिसे हम लोग अशरफी कहते हैं, तुम्हें दिखाता हूँ, कल बैंक में रखवा दूंगा। सोमरो ने जेब से मखमली थैली निकाली और हथेली पर उलट दी। हथेली पर 5 अशरफियां रोशनी में झिलमिला रही थी। सबने उठकर अशरफियां हाथ में लेकर देखी। सब 22 कैरात की थी। मैंने कहा, वाह सोमरो, ये तुमने अक्लमंदी का काम किया है, अल्लाह मुबारक करे। यकायक बिजली चली गई। सोमरो ने अशरफियां वापस थैली में डाली और जनरेटर चलाने चला गया। जनरेटर स्टार्ट होती चारों तरफ रोशनी फैल गई। वापस आकर इसने सफेद थैली दोबारा निकाली और उसे उल्टा। अशरफियां देते ही इसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरे ये तो सिर्फ 3 है, 2 कहाँ गए? मैंने तसल्ली दी, सोमरो घबराओ मत, मिल जाएंगी। तेरी हक हलाल की कमाई है, बस अल्लाह सही से दुआ कर। यार कमर परेशान क्यों न हो, एक गनी की कीमत 1 लाख के करीब है। अब सब दोस्त खड़े होकर अशरफियां तलाश करने लगे। सब तकिए हटाकर, चांदियां उठाकर, झाड़ कर देख रहे थे। अशरफियां कहीं नजर नहीं आई। आफ्ताब चन्ना ने कहा, यार सुमरो, जाने से पहले हम सबकी अच्छी तरह तलाशी ले लेना ताकि तेरा शुबा हम पर न रहे। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई सिवाय मेरे। सबने अपनी जेबें उलट दी और हाथ ऊपर उठा दिए। यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? सुमरो ने कहा, तुम लोग मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये कायदे की बात है। आफ्ताब चन्ना बोला।
कमर तुम भी तलाशी दो, मैं रोते हुए कहा। यारो क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मेरी जेब में इसकी अशरफियां नहीं है, मेरी इज्जत है, मैं तलाशी किसी हालत में नहीं दूंगा। आफ्ताब चना ने आंखें निकाली। ये तो कोई बात ना हुई, जब हम सब कुछ इस तलाशी दे रहे हैं तो तुम भी तलाशी दो। मैं ज़ारो कतार रो रहा था, बड़बड़ाते हुए बोला, मेरा नाम कमर है, मोलाई हूँ, भूखों मर जाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा। मैं मौला अली की कसम खाता हूँ, मेरे पास सुमरो की अशरफियां नहीं है। सुमरो अब अजीब कश्मकश में था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर धीमे लहजे में कहा, यार कमर, मेरे भाई बचपन के दोस्त, मेरी बात सुकून से सुन। सब जो तेरे यार बेली हैं तलाशी दे रहे हैं तो तू भी दे दे, 2 मिनट की बात है, मामला खत्म हो जाएगा। मैं कंधे पर पड़े रुमाल से आंखें पोंछते हुए कहा, यार तू भी कह रहा है, मैं तलाशी दे रहा हूँ, मगर पहले इन सबको जाने दे, मैं अकेले अंदर कमरे में तलाशी दूंगा। आफ्ताब चना बोला, ठीक है, तेरी शर्त है तो हम सब जा रहे हैं। सुमरो ने दरवाजे की कुंडी लगा ली। अल्लाह साईं ने चाहा तो तेरी अशरफियां मिल जाएंगी। उनके जाने के बाद सुमरो ने दरवाजे पे कुंडी लगा दी। हम एक कमरे में आ गए। मैंने अपनी कमीज उतारकर कुर्सी पर डाल दी। ले सुमरो, इत्मीनान से पूरी पूरी तलाशी ले ली। मेरे मुकद्दर में बेइज्जती लिखी थी, वो तो होनी ही थी। सुमरो ने आगे बढ़कर एक जेब में हाथ डाला, वहां से बीड़ी का बंडल और माचिस निकाल कर मेज पर डाल दी। दूसरी जेब में अखबार में लिपटी हुई कोई गर्म चीज थी। सुमरो ने अखबार खोलकर मेज पर फैला दिया। उसमें एक पराठा और एक कबाब थे। मैं कुर्सी पर ढह गया। तो यार ये थी मेरी इज्जत। मुझसे नवाले हलक से नहीं उतर रहे थे। मेरे सामने खाना रखा था और वहां घर में मेरी बीवी सकीना सुबह से भूखी बैठी थी। ये रोटी तेरी भाभी के लिए जेब में डाल ली। सुमरो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे सकता हो गया हो। अब रोने की बारी उसकी थी। उसने रोते हुए अपना सर मेरे कदमों में डाल दिया। ये क्या कर रहा है यार? मुझे गुनाहगार मत कर। जो बेइज्जती मेरे मुकद्दर में लिखी थी वो हो गई। किस्सा खत्म। सुमरो बोला, नहीं कमर, तू अपनी जूती मेरे सर पर मार, मैं इसी काबिल हूँ। तेरी बहुत बेइज्जती हुई। अल्लाह साईं मुझे माफ करे, तू भी मुझे माफ कर दे, तू वाकई कमर है। इसी अस्ना में बिजली आ गई। साथ ही सुमरो की बड़ी बेटी जनरेटर बंद करने गई तो वहां से 2 अशरफियां उसको मिल गई। उसने लाकर सुमरो को दी। सुमरो ने मुझसे कहा कि मैंने दावा शुरू होने से पहले ही खाना भाभी के लिए भिजवा दिया था। मैं रोता रहा और बहुत दिल टूट गया मेरा और मैं घर चला गया। अगले दिन सुमरो सुबह ही मेरे दरवाजे पर आ पहुंचा और उसने कहा, चल कमर, तुझे कुछ दिखाना है। मैंने कहा, मुझे नौकरी पर जाना है, मेरी दिहाड़ी का टाइम निकल जाएगा। वो मुझे बस एक खोखे पर ले गया। वहां जाके उसने मुझे बताया कि ये खोखा आज से तेरा है, तो मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, तो यहाँ बैठकर इसका हिसाब किताब संभाल। मैंने कहा, यार मैं इतना महंगा खोखा नहीं खरीद सकता, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं। लेकिन सुमरो ने कहा कि मैं तुझे ये कर्जे हंसना दे रहा हूँ, 50 रुपए तू रोज मेरे घर भेज दिया करना और बाकी हिसाब किताब तेरा। सुमरो की बात सुनकर मैं जब जज्बात से मकलूब होकर उसे गले लगा लिया। देर तक उसे पकड़े रहा। मेरा बदन लरज रहा था। सुमरो ने आहिस्ता से मुझे अलग किया। उसकी आंखें भी झिलमिला रही थीं। वो आंसू पोंछता हुआ घर की तरफ चल दिया। कमर आसमान को तकते हुए हाथ फैला दिए। या अल्लाह, मेरे दोस्त की हिफाजत करना, उसके रिस्क में इजाफा करना। तो साथियों, ऐसे ही वो दोस्त हैं जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं और ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से ही चल रही है। हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि इस दुनिया को अच्छा बनाने में अपना अपना हिस्सा डालते रहें।